आप एक बार अंदर घुस गए ना, बाहर एक बड़ा सा ताला लगता है, आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। 1 घंटे का एपिसोड दिखाते हैं आपको, 24 घंटे में जो हमारे ऊपर बीतती है वो सिर्फ हम जानते हैं एज कंटेस्टेंट्स। कि मेरी दुनिया वही बन गई थी अब, कि वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वही दोस्त, वही फैमिली, वही सब कुछ, उनसे झगड़ा, सब कुछ वही। बाहर निकल के ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस अलग है बिल्कुल। दैट वाज लाइक माय फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी। अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, a lot of fame, a lot of respect, a lot of love from both the shows. So I would say you know both are equal for me like that. Many friends from the industry, ऐसी बात नहीं है. I've got many friends in fact, and we all like have a good bond. We all share a good friendship. ऐसी बात नहीं है. Even my Big Boss friends have been my friends till now. So hi guys, I'm Pratik Sehajpal and you're watching me on Speak Easy on IDWA. हमारे टाइम पे कोरोना बहुत पीक पे था एंड एट दैट टाइम वी वर सपोज्ड टू बी वी वर मेंट टू बी क्वारंटीन्ड बिफोर द शो स्टार्टेड. सो बिफोर बिग बॉस OTT आई वाज इन क्वारंटीन फॉर अबाउट आई थिंक 7-8 days. And after Big Boss OTT, before I entered the main show, I was in the quarantine for about 12 days. So overall, I was in quarantine, or let's say, what do you say, in a confined space for about 183 days overall. So that's about 6 months. I entered this. I left my home on 31st July, and I came back on 30th January. So it's a great show, yeah. I'll tell you, it's a great experience, and there are so many things which happen inside the house, like emotionally, and it's like amazing. It's like ऐसा होता है ना जैसे स्कूल का हॉस्टल होता है. So आप कहीं नहीं जा सकते. You don't have मोबाइल फोन्स, you don't have access. वो जैसे you know, let's say 60s के टाइम का हॉस्टल. So 60s के टाइम के हॉस्टल में आप सिर्फ खत से बातें कर सकते हो अपने घर वालों से. 6 महीने में, 3 महीने में एक बार बात होगी तो होगी. So it's like that, yeah. But it's a great experience. There are so many things which happen inside the house, like you know, friendships and rivalries, and आपको अपना खाना खुद पकाना पड़ता है. फिर खाने की जैसे चीज़ पे you know, there are fights happening. You can't help it. You're standing in the kitchen, you're fighting for food, in front of food, and I made some really good friends. And people would not understand. It's a show where जो देखने में बहुत आसान लगता है बाहर से, आप टेलीविजन पे देखते हो तो बहुत लगता है कि जैसे ईजी है. बट व्हेन यू आर इनसाइड दैट हाउस, व्हाटएवर हैपेंस, 1 घंटे का एपिसोड दिखाते हैं आपको, 24 घंटे में जो हमारे ऊपर बीतती है वो सिर्फ हम जानते हैं एज कंटेस्टेंट्स. मेंटली आई वुड नॉट से इट इज़ हेल्दी. फॉर अ पर्सन इट इज़ नॉट हेल्दी. आई वुड से यू नो, जो मेंटली अपने आप को संभाल नहीं सकता उसके लिए हेल्दी नहीं है. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू, मैं देखता था ऊपर कि यार कौन सी जगह से मैं भाग सकता हूँ यहाँ से कूद के. यू नो, समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू फील anxious, when I used to be working out, sometimes I used to feel कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा, I'm feeling suffocated. So I used to find कि यार कहाँ से मैं भाग जाऊँ, बस भाग जाऊँ यहाँ से, क्योंकि I just wanted to you know, leave that confined space and enter into freedom and feel you know, liberated. क्योंकि आप एक बार अंदर घुस गए ना, बाहर एक बड़ा सा ताला लगता है, आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते. You can't come out with your choice. No matter what the scenario is, no matter what happens, until and unless you're voted out, you can't go out at all. So that's like psychologically वो आपको इतना वो फील होता है कि यार. But overall, I'll tell you, I mean, it gave me a lot. So I love that show. It was not comfortable in the start. I remember I used to be crying on the phone with people when I used to speak to them for weeks when they used to talk to me about Big Boss, because there was so much, you know, inside me which I could not take out inside the show. So yeah, it was. But overall, the love that I was getting was like I was compensating that with that. And I was working constantly, which I was, you know, trying to compensate with. और मैं भाग रहा था काफ़ी सारे अपनी इमोशंस से. एंड इट्स ओके, ओवर टाइम यू इवेंचुअली यू नो, it just gets fine. But I've heard that some people are still on antidepressants after the show for years because it takes a toll on your mind. Yeah, there are some people like that. For the longest, not the longest, I would say for a couple of months I wanted to go back inside the house, because वो होता है ना कि मेरी दुनिया वही बन गई थी अब, कि वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वही दोस्त, वही फैमिली, वही सब कुछ, उनसे झगड़ा, सब कुछ वही. बाहर निकल के ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ. आई जस्ट यू नो, अवे फ्रॉम ऑल द ये बिल पे करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर के जो झंझट होते हैं भाई, वहाँ पे आ गया वापस. तो ऐसा लग रहा था कि भाई यही बेहतर है. यहाँ कम से कम बिल पे करने की टेंशन तो नहीं है. यहाँ पे कम से कम फ़ोन की, किसी का फ़ोन आ रहा है उसको कॉल बैक तो नहीं करना. यहाँ पे जो है यहीं पे ही है. किसी से बात नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, शाम को हो जाएगी, बिकॉज वो आपके सामने ही है. यहाँ पे ऐसा है कि भाई अगर आप बाहर आ गए हो तो आपको किसी का कॉल आया, अगर आपने नहीं उठाया तो आपको कॉल बैक करना पड़ेगा. वो पूरी यू नो झंझट एंड वो पूरे फॉर्मेलिटीज़, वो सब जिंदगी की शुरू हो गई थी दुनिया में एकदम से अचानक से. आई वाज लाइक मैन, कमाल है यार. आई थिंक बोथ द शोज आर, दोनों के अंदर अपनी एक बात है यू नो शोज़ में. ऐसा नहीं है कि मैं बिग बॉस, आई विल चूज बिग बॉस ओवर खतरों के खिलाड़ी. ऑब्वियसली बिग बॉस इज लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट शो गिव मी अ लॉट. एंड नॉट जस्ट दैट, आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट शो. मैंने बहुत अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उस शो में. खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस अलग है बिल्कुल. दैट वाज लाइक माई फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी. एंड दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स. एंड काफ़ी सारी चीज़ें, मज़ा भी बहुत आया. लाइक वो भी एक ऐसा था कि यू नो 45 days, 50 days, सडनली यू वर जस्ट पुट
into a different country where people don't even speak your language, they don't know you, they don't know you at all, and suddenly you have to do all the things like which is like life threatening. Obviously सेफ्टी होती है वहाँ पे, बट देखा जाए तो होता ही है भाई कि ऊपर से पानी से नीचे कूदना है, पानी में समुद्र में कूद जाओ एकदम से एंड ऑल दैट. सो वो अलग अलग किस्म की एक वो चीज़ थी. बट आई वुड से दैट आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम बोथ द शोज. सो आई वुड से यू नो both are equal for me like that. Advise people to stay away from it, but this is my this thing, psychology. Stay away. I've come to a point and in my life where because I believe that in real life I should be away from relationships and all sorts of romantic kind of love. Plus जब मिला तो जो मेरा character है जिगर उसमें भी उसका भी he's also very ambitious. वो भी relationships में मानता है, but उसका भी primary focus जो है वो भी ambition है उसका. So eventually what happens in the show is a different situation, which is the reason why in real life also I stay away from relationships, I think, but primarily the focus is on being career oriented, ambitious, and वही point है. The writer who's Nishit sir और जो director है ललित sir, उनका जो enthusiasm था ना while describing the character and the story, I felt कि यार I should do it man, because मैंने जब script पढ़ी और जो lines पढ़ी ना, मुझे लगा कि यार this is very much fun. It's gonna give me a lot of scope to portray so many things, so many layers to the character. तो मुझे लगा कि I should just go for it man. We were shooting outdoor and कभी gym की access होती थी, कभी नहीं होती थी. I would not say that it's healthy, but yeah, I have stayed hungry for like 24 hours multiple times to give when it's about body shots, तो पानी वगैरह and all that. So मुझे ये था कि मैंने इतनी मेहनत करी अपनी बॉडी पे, अगर मैं लास्ट मोमेंट्स में कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ और बॉडी अच्छे से ना दिख पाए तो इतना it's gonna be like a very sad thing for me. So I was like man, I'll go to an extreme level which is not healthy, I know. I don't inspire people to do so, but I did that because I wanted to be at my highest potential. And it's okay यार, sometimes it's okay. So yeah, friendships are important मुझे लगता है, but एक इंसान को self sufficient होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी के ऊपर dependent रहोगे तो ultimately you will be disappointed some time or the other. I have like many friends from the industry, ऐसी बात नहीं है. I've got many friends in fact, and we all like have a good bond, we all share a good friendship, ऐसी बात नहीं है. Even my big boss friends have been my friends till now, and जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ या वो मुझे कॉल करते हैं. बट ऐसा है कि मैं कभी ऐसा है नहीं कि मैं कभी कॉल करके बोलूँगी यार मेरा ये चल रहा है या वो है यार ऐसा है वैसा है, बिकॉज मुझे लगता है कि ठीक है यार, स्पेंड द गुड टाइम्स टुगेदर, बट जो आपके जो लर्निंग टाइम्स हैं वो आप अकेले ही आप संभाल लो अपने आप को और समझ जाओगे. सो आई वुड जस्ट से दैट कीप गोइंग ऑन, स्टे कंसिस्टेंट एंड यू विल रीच वे यू वांट टू रीच. जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि लोग छोड़ देते हैं. यार स्ट्रगल बहुत है यार, ये है यार, वो है यार, छोड़ यार, चलते हैं यार, ऐसा है यार, वैसा है यार, छोड़ देते हैं. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. द मोमेंट यू आर कंसिस्टेंट एंड यू बिलीव दैट ओके आई एम गोना जस्ट, देयर इज नो प्लान बी, यही है जो है, तो फिर आप पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचना है आपको.